Now, the Delhi Air Quality Index has marginally improved from yesterday's very poor category to today's poor category. But a lot needs to be done, keeping in mind that Diwali is just around the corner. What's important is whether the Delhi government and the government of Punjab have been able to do any substantive thing in the last 1 year to resolve this perennial pollution crisis that engulfs North India. Because only then will we be able to see a real change. Any sort of knee-jerk reactions like deploying water suppressants across Delhi and campaigning red light on, gadi off would not really cut. Incidentally, both Delhi and Punjab are governed by Aam Aadmi Party in the current state. The onus is now on the ruling party to find a permanent solution. There is no longer any scope of playing blame games and wriggling out of the situations. The Punjab government has pledged to cut down stubble burning by 50%. There are more than 50,000 stubble burning instances that are reported on an annual basis. It has had little success thus far in achieving this target. What has been achieved on the ground? What are the bottlenecks? What kinds of solutions are being implemented? And until last year, we were hearing about these machines that the government was providing to the farmers in Punjab that would then solve the problem of stubble burning. What happened to that? What's the current status? There was also an alternative of the manual harvesting that could also be then used to ensure stubble burning was at the minimum. And are there any takers for all these measures and solutions that have been proposed government after government with regards to the farmers taking in, soaking it in and then pushing forward with these reforms? We'll try to figure out all these questions. We will try to reach out to the maximum number of ministers sitting out there in Punjab. It has been our endeavor to reach out to them every single day, in the morning, in the evening. We've not been able to get any of them to speak to us on the telecast, on air, on NewsX, but our endeavor continues. Meanwhile, my colleagues have filed these ground reports from various parts of Punjab and in Haryana where stubble burning is rampant. Let's quickly listen in. का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। दिल्ली के अंदरूनी मामले होते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है, साथ ही साथ बाहरी मामले भी होते हैं जिनमें अहम योगदान होता है दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले लगभग 28 विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक की है। सर, बैठक में क्या कुछ निकला? 28 विभाग थे। पॉल्यूशन पहली बार लग रहा है कि 300 के आंकड़े को पार कर चुका है दिल्ली में। देखिए, ये पहले से पूर्वानुमान था कि सर्दियाँ बढ़ेंगी और साथ साथ जो हवा की स्पीड है वो कम होगी। उसको देखते हुए अब धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। 300 से पार प्रदूषण गया है और उसको देखते हुए पूरे दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 का जो डायरेक्शन COQM का है उसे लागू कर दिया गया है। उसको दिल्ली में और कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए आज हमने जो है सभी विभागों की संयुक्त बैठक की और जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है। इसमें से पहला निर्णय लिया है ख़ासतौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं और उन पर विशेष मॉनिटरिंग शुरू होगी। जितने जो DC इंचार्ज हैं हॉट स्पॉट्स के 25 तारीख को ग्राउंड विजिट खुद करेंगे और वहाँ जो भी अगर कोई कमी है उसको जो है दूर करके वहाँ पे एक्शन प्लान को तेज़ करेंगे। साथ ही साथ अभी आज हमने ये देखा है कि 13 हॉट स्पॉट्स के अलावा करीब 8 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे AQI थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जो वहाँ ग्राउंड विजिट करके और क्या सोर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करेगी। साथ ही साथ अब पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव हो रहा है, अब अभी तक सामान्य पानी से हो रहा था, अब उसमें जो डस्ट सेपरेशंस के जो पाउडर होता है उसको मिला करके इसका छिड़काव किया जाएगा जिससे कि उसे और डस्ट को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से अब बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ पर्यावरण बस सेवा जो है वो शुरू करने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मेट्रो में जो 7-8 मिनट की जो गैप है उसे 5-6 करने का और जहाँ पे 4-5 का है उसे 2-3 करने का निर्णय दिया गया है। उसी तरह से जो SDMs हैं वो RWA की मीटिंग बुलाएंगे और वो जो गार्ड्स होते हैं उन लोगों को जो है उनसे हीटर दिलवाने के उपलब्ध कराने के लिए
जो है निर्णय लेंगे। सर कई स्कीम्स होती हैं, चाहे वो ऑड इवन हो या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ हो। 26 तारीख से आपने मुहिम शुरू किया, लगता है कि इस बार भी उसकी परमिशन मिलेगी? क्योंकि पिछली बार जो रेड लाइट ऑन है, इंजन ऑफ है, उसका सर जो परमिशन थी वो नहीं मिल पाई थी। देखिए, इस बार रेड लाइट ऑन गाड़ी आपको एक जन जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जाएगा, जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं लगा रहे हैं। इस बार जो सामाजिक संगठन है, जो इको क्लब है, पर्यावरण मित्र हैं, RWAs हैं, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, तो सब लोग मिल करके इसे एक जन जागरूकता के अभियान के रूप में चलाएंगे। क्योंकि रेड लाइट पर इंजन तो हम ही बंद नहीं करते हैं, तो हम सब मिल करके एक दूसरे को इसका प्रचार करें कि भाई रेड लाइट अगर आती है तो अपना जो है गाड़ी का इंजन बंद कर लें। सर ऑड इवन की जरूरत लग रही इस साल पड़ेगी? क्योंकि हमने देखा था ऑड इवन काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था, रिपोर्ट्स भी हमने देखी थी कि ऑड इवन से पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ था। लगता है कि इस बार ऑड इवन की जरूरत पड़ेगी दिल्ली में? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर निर्णय के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के निर्णय हम लेंगे। 2 सवाल और रहेंगे बस। जो प्रदूषण है दिल्ली में, सबको पता है कि दिल्ली का हिस्सा लगभग 30% होता है वाहनों का धुआं, डस्ट पोल्यूशन हो गए, और 70% जो हिस्सा होता है वो बाहरी राज्यों का है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर बड़ी संख्या में पराली जल रही है। हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन पंजाब में तो आपकी सरकार है। पराली को लेकर सर इस बार क्या कुछ परिणाम है निकल कर सामने आ रहे हैं? क्योंकि सर धुआं लगातार जो है पराली का वो दिल्ली पहुँच रहा है अभी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त बैठक हुई थी, और उसमें हमने इन सभी बिंदुओं को सबके सामने रखा और हमने अपील की कि भाई हमें आपके सबके सहयोग की ज़रूरत है। पंजाब में भी वहाँ की सरकार तैयारी कर रही है, और बाकी राज्यों के साथ भी हमने ये बात की है कि इस बार पिछले से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोर्स करें, जिससे कि हम कम से कम उसका जो असर पड़ता है दिल्ली में वो कम हो सके। आखिरी सवाल, कल दशहरा है, पटाखे पे दिल्ली पे बैन है, लेकिन NCR में अभी भी बैन नहीं लगा। बड़ी संख्या में पड़ोसी जिलों में आतिशबाजी होती है दशहरे के दिन। दिल्ली में भी ऐसा ना हो, इसके लिए सर कोई प्लान, या फिर NCR के जिलों में पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसका सीधा असर दिल्ली पे होता है, तो उसके लिए सर कोई प्लान बना अभी तक? देखिए, अभी दिल्ली में तो पटाखा बैन है, इसका निर्देश पुलिस को दिया जा चुका है, और दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है कि हमें सबको मिल करके प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना है। हमें ऐसा काम करना है जिससे कि हम पर्यावरण मित्र में अपना नाम शामिल करें, ऐसे कोई काम ना करें जिससे प्रदूषण बढ़ता हो। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो प्रदूषण को और पहले से जो है कम करने में हमें सफलता मिलेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Well, now quickly taking a look at a number of these ground reports that have been filed by my colleagues from Haryana and from Punjab, where the stubble burning problem has been rampant. धान की कटाई के बाद पराली का प्रबंधन किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि किसानों को पराली प्रबंधन में मदद की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जिस तरह से निसिंग क्षेत्र के किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि कृषि विभाग की तरफ से उन्हें मशीनें नहीं मिल रही, ऐसे में वो आगामी जो फसल की बिजाई करनी है उसमें देरी हो रही है, और अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने खेतों में सामूहिक रूप से पराली का दहन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ खेतों में जो पराली थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। किसान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है पराली प्रबंधन को? भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन ये परेशान सानू ये वे अज तो 15 दिन आ लेना बनिया पईयां ने, कोई गठियां वाला नहीं आउंदा, उन्हां दे कोल कोई इन्ना प्रबंध कोई नहीं। साडे सारे शहर दे विच सिर्फ 2 मशीनां ने, वड्डा साडा शहर है, इहदे विच असां ਡੀਕ के असां किसे छटाला बीजना है, किसे सब्जी लानी है, अगों पलेवा कणक लई करना है। सानू इस गल की परेशानी आई, अज 15 दिन लेना बनिया नूं हो गए ने। इस वजह तो असां वेट कर करके ते कल साडे कोल सारे जिले दे किसान आए ने भई सानू कोई दसो। असां मेरे उन्हां नूं यही गल कही सी भई 2 बजे खुद मैं भी अग लानी है, तो जिस लानी है कल नूं 2 बजे 11 तरीक बुधवार 2 बजे अग ला सकते हो। हैं इहदे विच हुण सरकार जो भी साडे नाल करना चाहती है ना कर लाए, असीं किसी गल्लों घबराते नहीं। साडे चलान करने ने, सानू जुर्माने पाने ने, जे कोई सानू मुआवजा दिते ने ते वो साडे तो जुर्माने ले लैणगे। आ जिहड़ी है वो वेखो इधर भी मेरी जीरी है हरी खलोती है,
वो तीसरी बारी लगी है। अज तक ओनू नहीं कोई देखने आया, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई गिरदौरी करन नहीं आया। इस वेस तो दुखी होया। अज असी 15 दिन पिछों अग लाई है। भारतीय किसान यूनियन। तो क्या कृषि विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती पराली प्रबंधन को? अरे कोई हमारे को मदद नहीं मिलती। हमारा बड़ा गांव है, इसमें 2 मशीन है। अब देखो ये गट्ठे आज पूरे 20 दिन हो गए बंदे पड़े और हमारा कुछ ठान है, हमने बरसीन बोना है, कुछ ठान नहीं आया। हमारे को ये बड़ी बात की ये हमारे को ये हमारा धुआं इसका है जो उनसे हमारे गट्ठे बांध के जो लाते हैं उसका धुआं नहीं, वो जलते हैं सेलरों में, उसका धुआं नहीं, इसका घना कड़वा धुआं है। जो उनसे गट्ठे बांध के जाते हैं सेलर में फूकते हैं तो धुआं तो उसका भी है। तो एक खेत में जैसे आग लगाई है पराली में, इससे खेत की मिट्टी भी तो खराब। अरे कुछ फिर मजबूरी में क्या करें? मजबूरी है क्या करें भाई साहब? हमें डंगरा का बरसीन बोना, क्या करें मजबूरी में, क्या करें, किधर जाएंगे? देखिए किसानों की वजह जायज है कि अगली जो फसल की बिजाई करनी है वो देरी हो रही है उसमें, और सरकार की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से अभी उनको मदद नहीं है। आप क्या देखते हैं कि इससे जो किसान है उसका नुकसान भी है, कहीं ना कहीं उसको पराली का पैसा मिल जाता? नुकसान तो सानू पता भी नुकसान है, पर साड़ी मजबूरी भी है। 15 दिन हो गए बटे अद्धा किला स्टाला भेजना है। हाँ जी, स्टाला भेजांगे तो हम होगा ना, तो कोई चुकन ही नहीं आता। हाँ जी, तो अं पकड़ों पैसे देने जो साडा फ्लैट आता उदों नहीं साडा कोई ना सानू मुआवजा देंदे। हुण मर के साडी पक्की है, हुण इन्हां दी सैलट आ गई। जो साडी फ्लैट आया ही उदों नहीं इन्हां ने साडा कुछ भी सुनी। सरकार कहती है किसानों को हम सब्सिडी देते हैं, नहीं दी किसी को नहीं सर 0% है जी। एससी को देती है, एससी बेचारा ना किसी को ट्रैक्टर है, एससी पीसी को दे दी। जो किसान है उसको तो देते नहीं है कोई किसान को। तो ये जिस तरह से कर रहे हैं, कितने किसान हैं जो आज इस तरह से आग लगा? देखो बहुत मात्रा में आज किसान आग लगाएंगे, क्योंकि 15 दिन हो गए ये लाइन यहाँ पर लगाए को। अभी तक ना कोई बेलर यहाँ मुहैया करवाया गया है, ना इसका समाधान किया गया है। तो हमारी तो ये सरकार से दोबारा फिर निवेदन है, अभी भी टाइम है, अभी भी जीरी खड़ी है, और जिन्होंने आग नहीं लगवाना चाहती सरकार उनको बेलर मुहैया कराए, वरना हम आग ऐसे ही लगाएंगे और आगे भी लगाते रहेंगे। सरकार टाइम टू टाइम जो इसका उठान करवाए, नहीं तो हम आग लगाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े सेलर हैं, वहाँ से इतना धुआं निकलता है, वो इनको प्रदूषण नहीं लगता। आज किसान आग लगाता है, वो इनको प्रदूषण लग रहा है। विभाग का कहना है कि किसान को सहूलियतें दे रखी है, मशीनें दे रखी है, क्या यहाँ नहीं पहुँच? कहाँ है? इतना बड़ा ब्लॉक नहीं सिंगा है। तो मैं प्रशासन से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप पूरे ब्लॉक में 2 बेलर मुहैया करा रहे हैं, लेकिन फसल तो यहाँ कई एकड़ है, कहाँ सरकार का वो है? तो बिल्कुल देखिए, हजारों एकड़ में धान की फसल जो है यहाँ बिजाई की गई थी, लेकिन जिस तरह से पराली प्रबंधन पूरी तरह से फेल हुआ है, उसके चलते अब किसानों ने यहाँ पर ये सामूहिक रूप से पराली का दहन किया गया है। आरोप है कि सरकार की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से जो भी सुविधा मुहैया कराई जानी थी पराली प्रबंधन को लेकर, वो नहीं कराई गई। बेलर मशीन उन्हें समय पर नहीं मिली, और यही वजह है कि आगामी जो फसल उनको बिजाई करनी, चाहे वो चारे की थी या गेहूं की, उसमें अब वो देरी हो रही है। और इसको देखते हुए मजबूरी है उनकी कि वो आज यहाँ पराली का दहन कर रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल में फसल अवशेष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि अब तक के 107 फसल अवशेष के मामले पाए गए हैं, जहां किसानों को लगातार जिला प्रशासन द्वारा समझाया भी जा रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। मैं मौजूद हूं कैथल के पेवा चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो एयर क्वालिटी की बात करें तो 252 वो पहुंच चुकी है। लगातार जो मामले हैं, जो बात करें फसल अवशेष की बात करें या बात करें कूड़ा करकट की, जो जलाने के बाद जो कैथल शहर की जो हवा है वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। उसी के साथ साथ बता दें कि अस्पताल के अंदर लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है, और बता दें कि लगभग जो एलर्जी की मरीज़ है वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ बात करें तो जलन है, जो आंखों के अंदर जो जलन होती है वो भी देखने को मिलती है। कैमरामैन संदीप ढूल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रोहतक में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 150 से 200 के बीच में है। इस वक्त हम खेतों में खड़े हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से स्मोक जो है आज सुबह से ही फैली हुई है। तो ये साफ संकेत है कि हवा में जो है प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्मोक जो है, धुआं जो है वो आप साफ जो है तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो लगातार जो प्रदूषण है वो जो है बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो सरकार है प्रयास कर रहा है प्रदूषण को रोकने के
लिए, लेकिन चोरी छिपे जो है पराली भी जलाई जा रही है। हालांकि इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि पराली ही कारण नहीं है प्रदूषण के लिए, और भी अधिक कारण है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण कारण वो और भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी इस इलाके में रोहतक जिले में ज्यादा धान की कटाई नहीं हुई है, तो ऐसे में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि प्रदूषण जो है वो और भी बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लगातार प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें तो कल सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 के नज़दीक था, लेकिन कल जिस प्रकार से विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया उसके बाद अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में बात करें तो करीबन 194 पर जा पहुंचा है और यह सामान्य माना जाता है। हालांकि पिछले दिनों जिस प्रकार से विभाग द्वारा बताया गया था कि सोनीपत में उपकरण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करता है उसमें तकनीकी खराब है, उसका मेंटेनेंस ना होने के कारण इस प्रकार से देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में सोनीपत का नाम आया था। लेकिन जिस प्रकार से उपकरण ही खराब हो तो सुविधाएं किस प्रकार से मिले, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिसका मेंटेनेंस रेगुलर होना चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो फसल अवशेष के 30 मामले अभी तक सोनीपत में सामने आए हैं, जिसमें 77,500 रुपये किसानों पर जुर्माना लगाया है। और जिस प्रकार से दिल्ली से सटा हुआ सोनीपत है, हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार आगजनी के मामले कुछ ज़्यादा हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार धरातल पर उतर कर लगातार कार्रवाई कर रहा है और जहां बात करें तो करीबन 77,500 का जुर्माना किसानों पर लगाया जा चुका है। और ग्राउंड स्तर की बात करें तो किसानों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और प्रशासन अब लगातार जागरूक कर भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें औद्योगिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से रात होते ही जहरीला धुआं जलना शुरू हो जाता है और अपशिष्ट और जहरीले अपशिष्ट पदार्थों में सरेआम आग लगा दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। एक तरफ जहां किसान को दोषी माना जा रहा है तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री एरिया में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती। हालांकि अधिकारी ग्राउंड पर जाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कार्यालय में बैठकर रणनीति तय हो रही है। और जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिदिन कूड़े और अपशिष्ट पदार्थों में आग लगाई जा रही है, ऐसा न केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बल्कि आबो हवा भी खराब हो रही है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो एयर क्वालिटी सामान्य है, लेकिन आने वाले दिनों में यह काफ़ी बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रखा तो जिस प्रकार से इंडस्ट्री एरिया में लगातार आबो हवा और जिस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों में आग लगाई जाती है, यह लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मौसम साफ है और आज जिस प्रकार से हवा चल रही है, इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा। फिलहाल के लिए देखना यह होगा कि प्रशासन एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करने में कितना समय रख पाता है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान, हरियाणा। All right. So while that's the situation in the neighboring states of Delhi, in Haryana and in Punjab, we saw a number of these adamant farmers as well from Punjab who were hell-bent on burning parali, on burning stubble, daring the government to do anything that it wants, but the stubble burning would not stop. Obviously, it has taken a political turn. In such a situation, it is the environment, it is the people, it is the citizens, not just in Delhi, but in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh that are suffering. So, who's going to pay the heavy price of the health that is being jeopardized amidst this difficult problem, perennial problem that the northern part of the country faces every single year? Dr. Sanjeev Bagai on the telecast with me. Dr. Bagai, situation difficult. Now, we have been raising this important, essential issue time and again, the crisis engulfs North India. During this very same time, there have been Supreme Court judgments that have been passed out, but nothing really that has happened that we would actually be able to see a palpable difference in the air we breathe.
Good evening. The simple question is, why have incompetent and callous politicians at all? And I think they need to be made accountable. And we have courts, and I think the citizens should drag these politicians to court individually. It's a criminal breach of trust. It's a comprehensive failure. And all this sing-song of odd and even and things like this, it's a very cruel band-aid which is put on a gangrene and necrotizing areas of deteriorating health elsewhere. There are 29 body organs which are affected by toxic gases, fumes, particulate matter, volatile organic compounds, procarcinogens, toxic gases which include methane, hexene, carbon monoxide, sulfur dioxide. It involves the heart. There are sudden heart attacks, arrhythmias, myocardial infarctions, lungs, including asthma, bronchitis, wheezings, chronic obstructive lung disease, indeed lung cancer, brain strokes, involves the unborn fetus, the pregnancies, direct involvement with obesity and metabolic dysfunction, genetic disorders, liver disorders, kidney disorders, and of course there is plastic waste in the air too. The real important point here which I want to highlight is that every 10 units of PM 2.5 which increases on an annual exposure, it gives you more than 2 to 4-fold increase in cardiac and pulmonary deaths. And decrease in PM 2.5 of just 1 microgram decreases cardiac arrest by 8%. Right. These immediate effects are within 1 hour of exposure. Here we are being exposed hour after hour, day after day. This is not fair on the citizens, and Delhi government and indeed the Punjab government have to answer. You cannot run away from it. They have to answer, and they need to be made accountable. Yeah. Kavita Ashok also on the telecast with me. Now, Kavita, amidst this back and forth that continues to happen, you know, it's become a major political issue, and I keep saying that because the last time the government was wanting to make some amendments, changes, reforms when it comes to the farmer laws, it had to repeal them because the kind of pressure that had been put on the government. You know, the entire Delhi had come to siege. And that's why political parties, governments are reluctant to even get into this matter because it's highly volatile. Farmers at this point of time hold quite the, heft in being able to then do whatever they feel like simply because they have the power to do so. Rightly said. Of course, we know that India is an economy which is, based on majorly on agriculture, and we respect our farmers a lot. But I've just been watching the show, and I also heard a lot of farmers who are very unsatisfied on land, and they said that the government has not provided them enough balers. That means that the equipment on the fields is not there presently. First, I want to take two angles to this. One, what the farmers can do. The farmers can cooperate and not burn parali, keeping in mind the major picture that how everybody's health is being affected. On the other hand, I also want to bring to light how the farmers are saying that we are suffering because even if we do not want to burn the stubble, burn the parali, what do? We do not have the equipment. We do not have what the government is saying that, we are going to transform this into biofuel and other options. That means that whatever has been promised is not being delivered on the ground. So there is a difference in the policy making and the implementation at the ground level. So I would not blame the farmers totally. I would as an environmentalist say, if the farmers have the willpower, then they should cooperate with the government, and the government, on the other hand, has to make available the equipment which will prevent them from burning the parali. Okay. See, who's suffering? The people suffering are the citizens of Delhi NCR. We are suffering because there is a mismatch and an imbalance between the two parties. Okay. Now, Sandeep Chachra also on the telecast with me. Now, Sandeep, we're talking about human rights, we're talking about how people in the country have the right to breathe, right to live, and here it is a political problem that the government is unable to resolve. Oh, thank you for having me here, and good evening, Meghna. What I want to say is, you see, there is a dire need for developing both a social imagery as well as a public discourse on what the ecological pathways ahead are, both in the rural India, we're talking of agriculture here, as well as in the cities. It's not just Delhi, several cities were mentioned
In North India, there are many other cities, so in urban India as well. And I do celebrate the fact that your shows actually help contribute in developing that public discussion and perhaps the social consensus on the way ahead. Now, you see, cities have a past, agriculture has a past, and it cannot be wiped away. So what we need at this time is a turning point towards green and ecological, what I will call recovery models, since we can't remake or make new cities. So we need turning points. And in this kind of a turning point, we need it in agriculture. Now, talking of Parali, for instance, stubble burning is a result of a particular historical model which the state adopted. So we can blame the farmers today, but that's not true, because the Green Revolution model, which went into application in North India in the 60s, essentially meant what? It meant that you alternate between high-yielding varieties of Kharif rice and Rabi wheat. With a very short window in between for the transition. Farmers were talking today of 15 to 20 days, it could be a month. And in that time, the stubble has to be disposed of for the next sowing season. And of course, that therefore means it is time for us on the agriculture side to transition to more sustainable, what is called agroecological agriculture, and address the root issues here. In the interim, as the farmers were saying, and what Kavita ji also mentioned, you do need what is called patchwork solutions or transition solutions. Machines are not available, balers are not available. But, you know, again, I keep asking this question is that we continue to raise this matter, and governments after governments have said that, you know, we have come up with this alternative idea and the proposal and even implementation. You know, lakhs and lakhs of rupees were spent to buy these machines, but who is it that's using it? There were subsidies that the government was talking of providing to these farmers to let them buy these machines. But do they even have it? Do they even want to switch to this model? How are you going to then persuade them? How are you going to influence them? So the questions continue to remain. Answers are far and few in between. Like I said, we've been trying to reach out the environment minister in Punjab. We're trying to reach out to other ministers in Punjab, but we failed to get any response from them, which is unfortunate, because right now the question we ask, and we want responses, and we want responsible governments and their spokespersons and their ministers to come and answer the tough questions. And if they are doing something on the ground, it's been 1 year, if they have made progress, they say they want to cut down 50% of the parali burning, 50% of the stubble burning, what is it they have in terms of the statistics and figures to show for? So again, questions are innumerous, answers we are not getting any. It's frustrating. Somebody like me who's become completely jaded, cynical about it, that, you know, people in Delhi, North India, they don't even want to discuss about it, because now they're just like, they've given up on the fact. They said, yeah, we'll have our lives cut down to 5 years or 10 years, but this is the fate that we've accepted. So that's unfortunate. I'm going to quickly also put in, you know, there is a quick chat that my colleague Naveen Nishant has had with the Environment Minister of Delhi, Gopal Rai. Let's quickly listen into what is it that he had to say. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, प्रदूषण हर साल आता है और लोगों की समस्याएं बढ़ते रहती हैं। चूक कहाँ होती है, सरकार में, प्रशासन में, या फिर अफसरशाही में? नहीं, देखिए, प्रदूषण दिल्ली के अंदर एक बड़ी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, समर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, तो दिल्ली में अगर हम देखें पूरे साल का एवरेज, तो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। अभी केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, 2015 में जो अच्छे एयर क्वालिटी के दिन थे वो 109 थे, इस साल 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो काफ़ी, अगर हम पूरे साल का एवरेज देखें तो उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन सर्दियों में जो यहाँ का मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, उस समय इसकी स्थिति काफ़ी जो है वो ख़राब होती है, और उसको नियंत्रित करने के लिए जो है विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, ग्रैप के माध्यम से सरकार दिन रात काम कर रही है। सर, पहले प्रदूषण को लेकर दिल्ली और पंजाब में जंग होती थी पराली के मुद्दे को, लेकिन अब दोनों जगह आपकी सरकार है। स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या स्थिति वैसी ही है? देखिए, अभी जो पंजाब के पर्यावरण मंत्री से जो हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि अभी तक जो पराली जो जली है
वो पिछले हमारी सरकार बनने से पहले जो स्थिति थी और उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस बार वहाँ से सकारात्मक रूप जो है परिणाम आएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट एनजीटी कई बार प्रदूषण को लेकर तमाम विभागों से सवाल कर चुकी है, जवाब मांगे जाते हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधरती। लापरवाही कहाँ नजर आती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन इसको और सुधारने की ज़रूरत है और उसके लिए दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और जो एनसीआर के राज्य हैं सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें दिल्ली के सोर्सेज का प्रदूषण भी है और दिल्ली के बाहर के जो राज्य हैं उनका भी प्रदूषण है। इसलिए सबके साथ मिल करके ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है और उससे मुझे लगता है कि अभी जो प्रदूषण में सुधार हो रहा है और बेहतर होगा। आखिरी सवाल रहेगा, आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पर कि जब प्रदूषण सर पर आता है तभी वो हरकत में आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, पूरे साल इस पर कोई काम नहीं होता। मेरे ख्याल से आरोप लगाने वाले जो है वो सोए रहते हैं साल भर, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता है। इस देश में एक अकेली सरकार है जो समर एक्शन प्लान पे भी काम करती है, अकेली सरकार है जो विंटर एक्शन प्लान पे भी काम करती है, अकेली सरकार है जिन्होंने वृक्षारोपण में देश के अंदर जितने मेजर सिटी हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट बढ़ाया है, अकेली सरकार है जिसने देश के अंदर ईवी पॉलिसी लागू की है। आज 17% प्राइवेट गाड़ियां भी आज ईवी पे हैं। दिल्ली के अंदर 800 से ज़्यादा बसें जो हैं वो ईवी पे चल रही हैं। तो दिल्ली अकेली है जो पूरे साल एक्टिव होती है और उसका परिणाम है कि 109 से 209 की तरफ हम पहुंच रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.